Hello everyone, welcome back to Civil Services Study. This is test number 27 for UPSC 2021 prelims. So let's start with the question number 1. Look at this. Consider the following statements and choose the correct code. First देखेंगे CBI needs, CBI के रिगार्ड में है Central Bureau of Investigation. CBI needs permission from the state governments under the specific consent for every case it needs to investigate. While in general consent, one-time permission is given and the CBI does not need permission for every case. Second, many states have withdrawn general consent to CBI and Kolkata High Court has expanded its jurisdiction to investigate central government employees in a state without the permission of a state government. तो सोचिए कौन सा सही होगा स्टेटमेंट. यहाँ ऑप्शन है सी, बोथ ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. तो हम देखते हैं ये क्या है. that CBI needs permission from state governments under specific consent. दो consent होती है, एक specific consent and second one is general consent. तो इसमें कहा गया है CBI needs permission from state government for every case it needs to investigate. ठीक है, for every case ये specific consent लेनी पड़ती है CBI को प्रत्येक केस के लिए. ठीक है, और ये जनरल कॉन्सेंट में क्या है, वन टाइम परमिशन लेनी पड़ती है एंड द सीबीआई डज नॉट नीड परमिशन फॉर एवरी केस. तो ये स्पेसिफिक कॉन्सेंट एंड जनरल कॉन्सेंट का डिफरेंस है ये. एंड दैट सेकंड इज मैनी स्टेट्स हैव विड्रॉन जनरल कॉन्सेंट टू सीबीआई. मैनी स्टेट्स ने विड्रॉन कर लिया है जनरल कॉन्सेंट. इट मीन्स क्या चलता होगा, स्पेसिफिक कॉन्सेंट दैट सीबीआई को प्रत्येक केस के लिए स्टेट गवर्नमेंट से कॉन्सेंट लेनी पड़ती है, तो स्पेसिफिक कॉन्सेंट. तो मैनी स्टेट्स हैव विड्रॉन जनरल कॉन्सेंट टू सीबीआई एंड रिसेंटली कोलकाता हाई कोर्ट, ये देखिए कोलकाता हाई कोर्ट हैज एक्सपेंडेड इट्स जुरिसडिक्शन टू इन्वेस्टिगेट द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इन अ स्टेट विदाउट द परमिशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन में देखेंगे. रिसेंटली a Kolkata High Court order expanded its jurisdiction to investigate the central government employees in West Bengal without seeking the specific consent of the state government. Without seeking. ठीक है, there are at least 7 states at present which have withdrawn general consent to the CBI, requiring the agency to seek case specific permissions. लगभग 7 स्टेट्स ने जो CBI से जनरल कॉन्सेंट विड्रॉ कर लिया है. इट मीन्स CBI नीड्स स्पेसिफिक परमिशन. ठीक है, तो यह 7 स्टेट्स कौन से हैं देखेंगे, जैसे मिजोरम, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, केरल एंड झारखंड. यह वह 7 स्टेट है जिन्होंने सीबीआई से जनरल कॉन्सेंट विड्रॉ कर लिया है. दैट मीन्स सीबीआई को प्रत्येक केस के लिए इन स्टेट गवर्नमेंट से स्पेसिफिक कॉन्सेंट लेनी पड़ती है. ठीक है, और देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कॉन्सेंट फॉर अ प्रोब बाय द सीबीआई. These are general consent and the specific consent. When a state government gives a general consent to CBI for probing a case, the agency is not required to seek fresh permission every time it enters that state in connection with the investigation of every case. तो ये CBI के 2 consent होते हैं, जनरल एंड स्पेसिफिक. ये सारा डिफरेंस याद रखना है. ठीक है, अब क्वेश्चन सेकंड देखिए. Consider the following statements. First है Iramati Dibalu are red sand dunes which are among the 34 notified National Geological Heritage Monument sites of the India. Second, the term geological heritage is used for natural geological or geomorphological features that have aesthetic, intrinsic or scientific and educational value that provide unique insight into the geological processes affecting the formation or evolution of Earth. In India, geographical heritage sites are declared by the Geological Survey of India. तो इसमें करेक्ट स्टेटमेंट्स कौन से हैं देखिए. यहाँ करेक्ट ऑप्शन है सी, बोथ ऑफ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. ये देखेंगे इरामाती दिबालू, ये रेड सैंड ड्यून्स है विच आर अमंग दी 35 नोटिफाइड नेशनल जियोलॉजिकल हेरिटेज मोन्यूमेंट साइट्स. ठीक है, तो ये इसमें से है. और जो इंडिया में है, जो जियोग्राफिकल हेरिटेज साइट्स कौन डिक्लेयर करता है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. ओके, एंड ये जियोलॉजिकल हेरिटेज ये क्या है, इट इज़ यूज्ड फॉर नेचुरल जियोलॉजिकल और जियोमॉर्फोलॉजिकल फीचर्स that provide us unique insight into the geological process for the evolution of earth. तो ये दोनों ये स्टेटमेंट सही है. तो ये याद इसमें रखना है that the geographical heritage sites are declared by the Geological Survey of India. ये देखेंगे among the 34 notified National Geological Heritage Monument sites of India by the Geological Survey of India, it is the Eramati Dibalu or coastal red sediment mounds located between Visakhapatnam and
भैमुनीपट्टनम, ये कहाँ है? विशाखापट्टनम के नज़दीक में। इरामाती दिबालू, रेड सैंड ड्यून्स, नेचुरल रॉक फॉर्मेशंस एट मंगामारीपेटा, million years old Bora caves and volcanic ash deposits said to have originated from the volcanic eruptions of Toba in Indonesia 73,000 years ago near Araku। तो ये सैंड ड्यून्स कैसे बने, ठीक है, इसका प्रोसेस बताया है। तो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, which state recently has formulated ordinance on the issue of religious conversions। देखिए ऑर्डिनेंस किस स्टेट ने किया है रिलीजियस कन्वर्जन को लेके, जहाँ ऑप्शन है यहाँ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड महाराष्ट्र। तो सही इसका ऑप्शन होगा ए, उत्तर प्रदेश ने अभी ऑर्डिनेंस पास किया है रिलीजियस कन्वर्जन को लेके, ठीक है, तो ऑप्शन है ए, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन 4 देखते हैं, विच गल्फ कंट्री इज द फर्स्ट अरब नेशन टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी वाया कोल पावर प्लांट। क्वेश्चन देखिएगा, विच गल्फ कंट्री इज द फर्स्ट अरब नेशन टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी वाया कोल पावर प्लांट, जिसमें है यूएई, सऊदी, टर्की एंड यमन। तो इसमें कौन सा सही होगा? द करेक्ट ऑप्शन इज ए, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। यूएई इज द फर्स्ट गल्फ कंट्री और अरब नेशन टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी वाया कोल पावर प्लांट। ओके, क्वेश्चन 5 देखते हैं, विच नेशंस कैबिनेट हैज क्लियर्ड द लॉ फॉर केमिकल कैस्ट्रेशन ऑफ रैपिस्ट्स। ये देखिए, जैसे टर्की, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, पाकिस्तान एंड इंडिया, इसमें से कौन सा सही होगा? देखिए, विच स्टेट नेशंस कैबिनेट हैज क्लियर्ड द लॉ फॉर केमिकल कैस्ट्रेशन ऑफ रैपिस्ट। तो यहाँ सही ऑप्शन है सी, पाकिस्तान, ये पाकिस्तान ने किया है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन 6 देखिए, विच कंट्री इज डिसाइडेड टू रिटर्न 18th century स्टोलन आइडल ऑफ गॉडेस अन्नपूर्णा टू इंडिया। जो 18th सेंचुरी की गॉडेस अन्नपूर्णा की आइडल है वह किस कंट्री में और कौन सी कंट्री ने रिटर्न करने का ये डिसीजन लिया है? देखिए, जैसे कनाडा है, यूएस है, यूके है, फ्रांस है, इसमें सही ऑप्शन होगा ए, कनाडा, ठीक है। कनाडा हैज डिसाइडेड टू रिटर्न द 18th century स्टोलन आइडल ऑफ गॉडेस अन्नपूर्णा टू इंडिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, with reference to the maniac of fake news in India, fake news के रिगार्ड में consider the following statements and choose the correct code। फर्स्ट देखिए, there are certain provisions in the Indian Penal Code to tackle the maniac of fake news, but as there is no established law or regulatory mechanism to deal with it, ठीक है। सेकंड देखिए, the IT Act 2000 can be used to censor media in case of fake news or any broadcast related to malified intent। तो इसमें से फेक न्यूज़ के रिगार्ड में क्या सही है देखेंगे। यहाँ करेक्ट ऑप्शन होगा, सोचिए, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, बोथ ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विद रिगार्ड टू द फेक न्यूज़ इन इंडिया। ये देखिए, यस देयर आर सर्टेन प्रोविजंस इन द इंडियन पेनल कोड टू टैकल द मैनेक ऑफ द फेक न्यूज़, बट देयर इज नो एस्टेब्लिश्ड लॉ, देयर इज नो एस्टेब्लिश्ड लॉ और रेगुलेटरी मैकेनिज्म टू डील विद इट। तो ये फिर दो IT एक्ट है, IT एक्ट ऑफ 2000 कैन बी यूज्ड to censor media in case of fake news or any broadcast related to malified intent, ठीक है। तो IT Act 2000 को यूज किया जा सकता है to censor the media। ये देखेंगे इसका explanation, MeitY has the power to block information under the section 69A of the IT Act 2000, ठीक है, and the Information Technology Rules Act of 2009 has already issued advisories categorically informing the intermediaries to remove false news or misinformation concerning COVID-19 which are likely to create panic among public and disturb the public order and communal harmony. Also, section 66D of the Information Technology Act, punishment for cheating by personation by using computer resource। तो ये सब है, तो याद क्या रखना है, that section 69A of the IT Act 2000 is used to censor the fake news और media, ठीक है, ये सभी, and the Information Technology Rules of 2009। ये देखिए यहाँ, प्रोसीजर एंड सेफगार्ड्स फॉर ब्लॉकिंग फॉर एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन बाय द पब्लिक, इसके द्वारा, ठीक है, किसी भी इंफॉर्मेशन को रोकने के लिए, टू रिमूव द फॉल्स न्यूज़। हालांकि जैसे रिसेंटली जैसे कोविड-19 को लेके फॉल्स न्यूज़ चल रही थी, ठीक है, तो ये सब है फॉल्स न्यूज़ के बारे में। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट कोड। देखते हैं, ये देखिए, वन देखिए आर्टिकल 32, ये आर्टिकल 32 क्या है, याद कीजिए, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है। तो आर्टिकल 32 itself is a fundamental right which is meant to protect the fundamental rights of the citizens।
Second, Article 32 is not absolute. It can be restricted in certain given situations. Third, to address the violation against one's fundamental rights, a person has to approach the Supreme Court as it is the only body which can provide relief to the aggrieved citizens. तो इसमें कौन सा करेक्ट है कौन सा रॉन्ग है देखेंगे। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन होगा ए, जिसमें है 1 and 2। तो ये थर्ड जो है गलत है। कैसे गलत है देखा जाएगा। ये आर्टिकल 32 क्या है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, और आर्टिकल 32 इटसेल्फ इज ए फंडामेंटल राइट। इंपॉर्टेंट तो यह बनता है, इटसेल्फ इज ए फंडामेंटल राइट विच इज मेंट टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स। ठीक है। और जो आर्टिकल 32 इज नॉट एब्सोल्यूट, यह भी सही बात है, दैट फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट। ठीक है, द स्टेट कैन टेक अवे और अब्यूज एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स and it can be restricted in certain given situation. Yes, it can be restricted. थर्ड जो है गलत क्यों है, that to address the violation against one's fundamental right, a person has to approach the Supreme Court as it is the only body। ये only नहीं, ओनली सुप्रीम कोर्ट ही नहीं बल्कि आर्टिकल 226 के 226 के अंडर में हाई कोर्ट भी जो है फंडामेंटल राइट्स का एनफोर्समेंट कर सकता है। हाई कोर्ट के पास भी रिट इशू करने की पावर है। इट मीन्स ओनली सुप्रीम कोर्ट ही एक बॉडी नहीं है बल्कि सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज हाई कोर्ट कैन इशू रिट्स और टू एड्रेस द वायलेशन अगेंस्ट वंस फंडामेंटल राइट। ठीक है, ये देखेंगे। इट इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स लिस्टेड इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो आर्टिकल 32 है। ठीक है, लिस्टेड इन द पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट ईच सिटीजन इज एंटाइटल्ड। आर्टिकल 32 डील्स विद द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज or affirms the right to move the Supreme Court by appropriate proceedings for the enforcement of rights conferred in Part 3 of the Constitution. It states that the Supreme Court shall have power to issue directions or orders or writs, including writs in the nature of habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto and certiorari, whichever may be appropriate for the enforcement of any of the rights conferred by this part. तो आर्टिकल 32 के बारे में याद रखना है। यह क्या है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, एंड यह भी क्या है, एक फंडामेंटल राइट है। ठीक है, जो कि अफर्म करता है राइट टू मूव टू दी सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, रिट्स इशू करेगा, जो हैबस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, क्यू वारंट एंड सर्टियोरेरी। ठीक है, और क्या याद रखना है, दैट हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट बोथ हैज़ द पावर टू इशू रिट्स। ठीक है, फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 9, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट देखिए, द डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट फॉर द पर्पज ऑफ कंजर्वेशन इज टेकन एज पर द डिक्शनरी मीनिंग एंड इट इंक्लूड्स स्टैट्यूटरीली रिकॉग्नाइज्ड फॉरेस्ट, एरियाज रिकॉर्डेड एज फॉरेस्ट इन द गवर्नमेंट रिकॉर्ड, फॉरेस्ट डेजिग्नेटेड एज रिजर्व्ड, प्रोटेक्टेड एंड ऑल्सो फॉरेस्ट डिफाइंड अंडर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। ठीक है। सेकेंड, वंस डिक्लेयर्ड एज अ डीम्ड फॉरेस्ट, the areas cannot be denotified or declassified and are reserved for the purpose of conservation and biodiversity। तो करेक्ट कोड देखिएगा, इसमें कौन सा है फॉरेस्ट के रिगार्ड में। यहाँ सही ऑप्शन है ए, दैट इज ओनली 1, जो सेकंड है वो रॉन्ग है। ठीक है, तो फॉरेस्ट की डेफिनेशन क्या है, ये देखिए, इट इंक्लूड्स स्टैट्यूटरीली रिकॉग्नाइज्ड फॉरेस्ट। The second one is the areas recorded as forest in the government record and the forest designated as reserved, protected and also the forest defined under the Forest Conservation Act। ये 4 टाइप के फॉरेस्ट। ठीक है, और ये जो है ये गलत है, that the ones declared as a deemed forest the areas cannot नहीं बल्कि the areas can be denotified or declassified। ठीक है, ये याद रखना है। अब देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। Well, the Supreme Court order on December 12, 1996 says that the word forest must be understood according to its dictionary meaning. This description covers all the statutorily recognized forests, whether designated as reserved, protected or otherwise for the purpose of Section 2, Clause 1 of the Forest Conservation Act. The term forest land occurring in Section 2 will not only include forest as understood in the dictionary sense but also in any areas recorded as forest in the government record irrespective of the ownership। ठीक है, तो ये सभी याद रखना है फॉरेस्ट के रिगार्ड में। अब क्वेश्चन 10 देखेंगे। विद रेफरेंस टू दी अमेजिंग सिचुएशन ऑफ सिविल वार इन यूटोपिया, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। सिविल वार इन यूटोपिया। फर्स्ट देखिए, द सिविल वार इन यूटोपिया वाज स्टार्टेड व्हेन इट्स नोबेल प्राइज विनिंग प्राइम मिनिस्टर लॉन्च्ड ए मिलिट्री ऑफेंस ऑन Tigerian People's Liberation Front, which is also a military cum political organization.
Ethiopia's civil war has a danger of spilling into an international conflict where other nations like Eritrea, Sudan will be involved. And the varying party in the civil war has movement along the international borders and had already links with ousted Sudanese dictator. तो ये देखेंगे जो इथोपिया सिविल वार है क्या उसके क्या रीज़न है. करेक्ट कोड देखिए तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन है सी, बोथ ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. ठीक है, तो ये जो सिविल वार है इथोपिया में कब स्टार्ट हुआ, जब जो इथोपियन प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने मिलिट्री ऑफेंसिव यूज़ किया था. जो टिगेरियन पीपल्स लिबरेशन फ्रंट है वहाँ की जो पार्टी है मिलिट्री कम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन उसके अगेंस्ट में, इसके अपोज में जो ये सिविल वार स्टार्ट हुआ इथोपिया में. ठीक है, तो इसका ये देखेंगे अब. Recently, Ethiopia's Nobel Prize winning Prime Minister Abiy Ahmed started a military operation in the rebellious Tigray region in the country's north. Mr. Abiy has said it would be a limited campaign focusing on the Tigrayan People's Liberation Front, the militia cum political party that runs the region. However, almost 2 weeks into the conflict, Ethiopia risks falling into an ethnic civil war with regional implications. तो ये civil war जो चल रहा है यहाँ. ठीक है, well that's all. Thank you.